Yes. What are the changes? What are the different changes that you have seen while performing the practical for R load, RL load and RLE load separately as per the waveforms? What do you think? Changes in current. Current waveform. Okay. So if we are talking about the R load, so what has happened? It is exactly replicant of output voltage. Okay. Just its magnitude is less. Sorry, higher. Higher. Okay. But the because we are just using 1 ohm resistance. That's yeah, you can verify that. If suppose you are using the 100 ohm, if suppose you are using the 10 ohm, so what will happen in your waveform, that you have to monitor. Okay. yes. Yeah, you can change, you can vary the range of the resistance as per that your waveform, how it comes, what are the changes you have seen in your waveform, that you can observe. Okay, simultaneously if you want to change the value of inductance, then also you can change 1 ohm, 1 henry, 1 millihenry. Okay, 1 1 e to the power minus 3, that is 1 millihenry, 0.1 henry. So according to that, what are the changes which will occur in the waveform that you are going to see. Okay, yeah, that is why MATLAB very essential and very useful for us, because we can change the value very rapidly and we can say we can see the waveform. Okay, so before that, I think only 44 students are here, 45 students. Okay, so Payal, please ask them to join if they can join. Okay, so just drop one message that Prajakta ma'am is taking a lecture session on rectifier. Okay, so if they wish to come here, so they will come, otherwise it's okay. So I'm just giving you a brief introduction regarding to the rectifier. Yes, the rectifier is, as you know, that it converts, it helps to convert the AC source voltage to the DC voltage. Okay, so this is the main simple definition of the rectifier. It is the controller or the converter which helps to convert the AC source to the DC source with the help of the different semiconductor devices such as power MOSFET, power BJT, IGBT and thyristor. Okay, so here we are talking, if we are talking about the thyristor, so we need a gate pulse. अब वो gate pulse मतलब क्या होता है, जब PN जंक्शन होता है, ठीक है, तो तब हम वहां पे एक एनोड और कैथोड के बीच में हम क्या देते हैं, एक ट्रिगर देते हैं, है ना, टर्न ऑन. तो आपने टर्न ऑन मेथड, आई थिंक प्रियंका मैम ने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वी कैन टर्न ऑन दी थायरिस्टर. ओके, सो वन ऑफ दैट इज गेट. सो इफ वी आर यूजिंग द गेट, तो हम एक गेट को ट्रिगर देते हैं. अब वो ट्रिगर कब देना है, कैसे देना है, इट डिपेंड्स ऑन अस टोटली. हम 30 डिग्री पे, अब वो जो जिस टाइम पे हम गेट पल्स देंगे, उस टाइम इज नथिंग बट द अल्फा, 0 to alpha. Okay, so that alpha is nothing but the firing angle. Of what is firing angle, it helps, we are giving firing angle, मतलब एक angle होता है, on that angle we are giving the pulse, or we are giving the gate, we are gated that thyristor to make that thyristor conduct. Okay, so for that thing we are using one trigger or one gate pulse. So the angle between the 0, the starting of the waveform, and the where we are giving the gate pulse, that is the angle that is called the firing angle. Okay, it is denoted by alpha. Is it clear to all? Here we are talking about only thyristor and diode. Is it okay? Yes or no? So we're gonna see the what is PS Bhimra saying. Okay, so here is the PS Bhimra. Okay, so the PS Bhimra is saying we are having, suppose we are having one single phase half wave rectifier. Now just I'm going to tell you what exactly it is. If suppose we are talking about the rectifier, so it depends on the phases. It is broadly classified. It is broadly classified into two, that is single phase and three phase. Okay,
single phase and three phase. And if we are talking about the uses or number of thyristor if we are using, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, great. So here we are talking about the rectifier. Okay. So first, according to the if we got according to the phase, we are having two different types, that is single phase and next is what is that? बोलो मेरे साथ, क्या रहेगा? थ्री फेज रहेगा. Yes. According to the pulse or according to the controlling, पहला होता है जहां पे हम सिर्फ डायोड यूज करते हैं. ओके, ओनली डायोड, उसे बोलते हैं हम अनकंट्रोल्ड. ओनली फॉर डायोड. ओके, फिर हम यूज करते हैं थायरिस्टर प्लस डायोड. जो हमने अभी परफॉर्म किया उसे बोलेंगे सेमी कंट्रोल्ड. उसे क्या बोलेंगे? सेमी कंट्रोल्ड. ओके, और फिर लास्ट में हम क्या यूज करते हैं? ओनली थायरिस्टर्स. उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो, आपने फुल्ली कंट्रोल्ड. Okay, so these are the types. Okay, now third part, according to the number of thyristors we are using. Okay, so first आता है हमारा वन थायरिस्टर. SCR लिख दूं क्या? That will be better. 1 SCR, उसे हम क्या बोलेंगे? हाफ वेव. हम उसे क्या बोलेंगे? हाफ वेव और सिंगल पल्स. ओके, ये कैसे होता है मैं बताती हूँ. नेक्स्ट इज जहाँ पे हम टू थायरिस्टर यूज करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? फुल वेव. ठीक है, टू पल्स. ओके, नेक्स्ट इज थ्री थायरिस्टर. यूज करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? थ्री फेज हाफ वेव. ठीक है, या थ्री पल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स थायरिस्टर. यस, 6 SCR. उसे क्या बोलेंगे? फुल वेव, या उसे हम बोलते हैं 6 पल्स. और जहां हम 12 यूज करते हैं, 12 थायरिस्टर भी यूज करते हैं. ओके, हम वो साइक्लो कन्वर्टर में पढ़ेंगे. ठीक है,
ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, 3 फेज फुल वेव ही बोलेंगे, बट हैविंग द 12 पल्स। 12 pulse. यस, हैविंग द 12 पल्स। ये समझा रेक्टिफायर। अब सिंगल फेज हाफ वेव मतलब क्या, जहां पे हम एक ही एससीआर यूज कर रहे हैं, जहां पे हम एक ही एससीआर यूज कर रहे हैं। ओनली सिंगल। ओके, ठीक है। अब जो एससीआर फुल वेव है, ये हो जाएगा हमारा एससीआर फुल वेव। ठीक है, अब हमारा 3 पल्स है, मतलब आर वाई बी आएगा, आर वाई बी आएगा, वो यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, मैं सेकेंड टाइम ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो गया 3 पल्स। ऐसे ही आएंगे, ये ऊपर आ जाएंगे 6 पल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं ये रेड ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये रेड ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से, तो ये ऐसे जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये लो कैसे जाएगा, ये लो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर ये यहाँ से भी आएगा, है ना, यहाँ से कुछ तो भी होगा। फिर उसके बाद हमारा जो ब्लू है वो कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे टर्न होगा। तो ये हो जाएंगे अलग अलग। अगर हम वही वही बोलते हैं, हम वीएबी नीचे लेंगे, ऊपर हो जाएगा वीबीए हो जाएगा। सो इट इज 6 पल्स, 6 पल्स, 3 पल्स, सिंगल पल्स, 2 पल्स। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट रेक्टिफायर हैज बीन क्लासिफाइड। ओके, ये हो गया आपका रेक्टिफायर। नाउ इफ वी आर फोकसिंग ऑन द सिंगल फेज 1 एससीआर, अब जितना मैं बताती हूँ उतना आप सबको वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी है, और मतलब मैटलैब में करना है, और उसके वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वन विल फोकस ऑन सिंगल एससीआर, दैट इज हाफ वेव, जहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक थायरिस्टर यूज करेंगे। एक थायरिस्टर हमने यूज किया। ठीक है, उसके अक्रॉस हमारा क्या लोड है, उसके अक्रॉस हमारा कौन सा लोड है, हम डिसाइड करेंगे, हम लेंगे आर लोड। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आर लोड। अब ये वर्क कैसे करेगा, हम ये देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वीएस, ये हो जाएगा हमारा T1, और ये हो जाएगा हमारा आर। ऑलराइट, सो अभी ये वर्क कैसे करेगा ये हम देखेंगे। हमारे पास पीएस भी मिला है,
PS भीमरा में इनिशियली उन्होंने दिया है Vs is equal to Vm sin omega t, right? Then we are having one thyristor. Okay, the current direction of current is like this. Are you able to see this? Yes or no? Yes or no? Okay. So here, as you can see, R is there. Okay. If we are talking about only R load, so what will be the working? Okay, so what will be the working if suppose Vs you are giving? Okay, so the direction of the current will be like plus Vs T, that is thyristor, R load, and it will back to the minus Vs. Okay, so this is the simple waveform single phase. We are having one cycle 0 to 2 pi. 0 to pi is positive cycle, pi to 2 pi is negative cycle. We are giving the firing pulse over here. We are giving the firing pulse, okay, at somewhere alpha. This is the alpha. This is alpha is nothing but the firing angle. Alpha is nothing but the firing angle. So when the firing angle is given to the thyristor, before that it is 0. This is before that it is 0. But when we are giving firing pulses with the help of the gate, we are giving to the thyristor. So that time Vs is equal to Vn sin alpha. Vs is equal to Vm sin alpha. The magnitude of the waveform will be same like the Vs. V0 is equal to Vs, you can say. V0 is equal to Vs, you can say. Okay, so it will be like the Vs. Okay, it will be like the Vs. Vs जैसे टर्न हो रहा है वैसे हमारा V0 टर्न होगा. ठीक है, कहाँ तक? पाई तक, पॉजिटिव हाफ साइकिल तक. यहाँ पे कोई डायोड नहीं है, फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है जिसके थ्रू हमारा कंडक्शन कम हो, इंडक्टर नहीं है जिसके थ्रू हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो. तो जब थायरिस्टर को गेट पल्स नहीं मिलेगी, मतलब पाई तक, ठीक है, यहाँ तक मिल जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वी डोंट हैव एनी डायोड, वी डोंट हैव एनी फ्री व्हीलिंग डायोड, वी डोंट हैव एनी अनदर थायरिस्टर. So for pi to 2 pi, that is for negative cycle, we don't have any such kind of parameters. Okay, so for pi to 2 pi it will be 0. Pi to 2 pi it will be 0. The current will also be same like the voltage. The current will also be same like the voltage. Only the difference as per the resistance. If resistance will increase, the magnitude of voltage the magnitude of current will decrease. Okay, so if resistance will increase, magnitude of current will decrease. If resistance will decrease, magnitude of current will increase. So it is depend on the R. It is depend on the R load. Okay, the magnitude of the current is depend on the R load. Okay, but otherwise if we can say, if we are putting the value of resistance is equal to 1, so I0 is equal to Vm. I0 is equal to Vm. Okay, so it is same like the magnitude of Vs, same like the magnitude of V0. Okay, I0 will also be the same. So after that I0 will also 0, because there is no such kind of current flowing through the circuit, either positive direction or in negative direction. Okay, there is no such kind of current over there. So that will also be 0. Then after that 2 pi to another 3 pi. This one is 3 pi. 2 pi to 3 pi, it is again positive half cycle. So again the same procedure will follow. The gate pulse will trigger at an angle 2 pi plus alpha. Here it is 2 pi plus alpha. The triggering angle will be 2 pi plus alpha. Alright. Then after that 4 pi plus alpha. Okay. So it will be for every positive cycle the gate pulse will trigger at the alpha. Okay, at the alpha. And when the gate has been triggered, the thyristor comes in a conduction mode, and when it comes in a conduction mode, it acts as a forward bias and the current will flow through the circuit like this. Okay, so this is the simple resistive load half wave. Okay, here we have considered that half wave. Okay, so this is the single pulse. हमें कैसे मिल रहा है सिंगल पल्स? यहाँ पे as you can see here,
we are only having the single pulse. Okay, we are only having the single pulse. So this is the half wave thyristor with the resistive load. Here देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, a firing angle may also be defined as follows. Firing angle is measured from an angle that which the largest average output voltage or highest load voltage. Okay, so if thyristor given in the figure here, fired at omega t is equal to 0, 2 pi, 4 pi etc. the average load voltage will be highest. क्यों average load voltage will be highest रहेगा? क्योंकि अगर वो 0 पे यहाँ पे या 2 pi पे यहाँ पे, but at the instant of the positive waveform, at the instant of the starting of the positive waveform, जैसे ही वो start होता है तो average load कैसे आएगा? ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा. Yes or no? Hello? Are you there? Hello? Yes, ma'am. Yeah. So जैसे ही हम जैसे 0 पे हम फायरिंग एंगल देते हैं, तो 0 पे फायरिंग एंगल देते हैं तो ये जो इतना जो हमारा लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, ये नहीं होगा. यस और नो? ये नहीं होगा. तो जैसे ही Vs है वैसे ही हमारा Vm रहेगा, सॉरी वैसे ही हमारा V0 रहेगा, क्योंकि हम फायरिंग एंगल यहाँ पे देंगे. राइट? सो हम फायरिंग एंगल कैसे देते हैं उस पे भी हमारा एवरेज लोड वोल्टेज डिपेंड होता है. ओके, ये बहुत उन्होंने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और बहुत ही ज्यादा डेरिवेशंस वगैरह दिया है. इतना अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, हम सिर्फ वेवफॉर्म्स देखेंगे, वेवफॉर्म्स पे फोकस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली कैसे चेंज होता है. अभी ये हो गया हमारा सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विद RL लोड. अब विद RL लोड, सेम सर्किट विद RL लोड, L लोड सिर्फ लगाया. तो जैसे ही हम L लोड लगाते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा? L लोड लगाते हैं तो ये क्या होगा? इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला फंक्शन आ जाएगा. चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गया तो यहाँ पे देखो V0 स्लाइटली निगेटिव में जा रहा है. V0 स्लाइटली निगेटिव में जा रहा है बीटा तक. बीटा तक क्यों जा रहा है? क्योंकि निगेटिव में यहाँ पे हमारा फायरिंग एंगल कुछ तो होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, बट ये बीटा तक मतलब यहाँ पे एक लाइन ऐसी आएगी. ओके, तो यहाँ पे कुछ फायरिंग एंगल, जितना यहाँ पे फायरिंग एंगल दिया वैसे ही यहाँ पे बीटा करके होता है. तो पाई के बाद में और फायरिंग एंगल चालू होने से पहले जो एंगल रहता है उसे हम बीटा बोलते हैं. ठीक है, तो ये बीटा क्या करेगा बेटा? यहाँ पे ये बीटा होगा. ठीक है, तो जब हम इंडक्टेंस लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टेंस, वो कंडक्शन में ही रहता है, वो कंडक्शन में ही रहता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वो कंडक्शन मोड में ही रहेगा जब तक बीटा को क्रॉस नहीं करता. जैसे ही बीटा को क्रॉस किया, यहाँ पे दूसरा कुछ थायरिस्टर है नहीं, दूसरा कुछ डायोड है नहीं, तो ये चालू नहीं होगा. रिवर्स वाला जो हम बोलते हैं रिवर्स फ्लो ऑफ करंट, वैसा कुछ नहीं होगा. तो इसकी वजह से जो निगेटिव साइकिल में हमारा ये जीरो रहेगा. जीरो रहेगा कब तक? जब तक अल्फा ना आए, जब तक 2 पाई प्लस अल्फा ना आए, जब तक 2 पाई प्लस अल्फा ना आए. यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा आ गया. जैसे ही आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में इट विल रन, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इट विल रन. ओके, जैसे ही ये रन करता है उसके बाद फिर से बीटा तक जाएगा, बीटा तक जाएगा, उसके बाद फिर से जीरो होगा एंड इट विल कम बैक टू लाइक इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल. अब करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? ये तो जीरो में रहेगा. IS इज इक्वल टू I0. वाई IS इज इक्वल टू I0? बिकॉज it is in series. Okay, there is no such parallel connection over there, so IS is nothing but the I0. तो ये अल्फा के बाद क्या होगा? अल्फा it start conducting और it start charging. L will start charging. Okay, जैसे ही L start करने लगता है, जैसे ही L start चार्जिंग करने लगेगा, उसके बाद ये पॉजिटिव जब तक अल्फा आ जाता है. Here you can see. ओके, ये अल्फा आ गया, सॉरी पाई आ गया, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो गया. जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो जाता है, इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग. जैसे ही इंडक्टर डिस्चार्ज होता है, ये जो डिस्चार्जिंग जहां तक जीरो जाएगा वहां तक हमारा बीटा जाएगा, जहां तक जीरो जाएगा वहां तक हमारा बीटा जाएगा. ठीक है, जैसे ही ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो जाएगा जब तक दूसरा बार हम गेट ट्रिगर पल्स नहीं देते, गेट पल्स नहीं देते थायरिस्टर को, वो जीरो ही रहेगा. जैसे ही हमने थायरिस्टर को पल्स दी, अगेन द इंडक्टर विल स्टार्ट चार्जिंग एंड देन एट द 3 पाई इट विल डिस्चार्जिंग. जैसे ये जितना डिस्चार्ज होता है उतना हमारा बीटा होगा. ये जीरो हो गया, ये झट से जीरो हो गया एंड देन
वो पूरा जीरो रहेगा until हम दूसरी गेट पल्स नहीं देते. So this is the simple single phase half wave circuit for RL load. ये समझा सबको? ये जो आ रहा है इट इज ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर. ओके, ये रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव लोड में नहीं था, ये RL लोड में है. यस और नो? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. नेक्स्ट इज सिंगल फेज हाफ वेव विथ फ्री व्हीलिंग डायोड. विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में रन करेगा हो गया रन, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करेगा, इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड. इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड. इसलिए आई नॉट यहाँ पे जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरा डायरेक्शन करंट है वो ऑटोमेटिकली फ्लो होते रहेगा लोड से. जैसे ही लोड से करंट फ्लो करने लगता है तो ये जीरो नहीं होगा. जैसे RL लोड में जीरो होता था क्योंकि वहां पे दूसरा कुछ फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं था, थायरिस्टर नहीं था, उसकी वजह से क्या होता था, वहां पे हमारा जो डिस्चार्जिंग के लिए जो करंट फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो सकता था. इज इट ओके? सो उसी वजह से वहां पे क्या होता था, हमारा जो I नॉट है वो जीरो पे आता था. यहाँ पे क्या होगा, वी आर हैविंग द फ्री व्हीलिंग डायोड. सो थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड द इंडक्टर स्टार्ट डिस्चार्जिंग and in the load the current will flow, and in the load the current will flow. There is no such zero current will flow through the load. Okay, there is something current will flow through the load with the help of the free wheeling diode when in the negative half cycle. Yes or no? समझा यहाँ तक? देखो करंट कैसे हो रहा है, अल्फा आ गया, इट विल स्टार्ट चार्जिंग. जैसे इसका चार्जिंग हो गया, पाई पे आ गया, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म, इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग कब तक, जब तक दूसरा अल्फा हम ट्रिगर नहीं करते, जब तक दूसरा गेट पल्स नहीं देते, इट्स विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. ओके, डिस्चार्ज होते रहेगा, फिर से हमने पल्स दे दी, फिर से इट इज चार्जिंग एंड देन डिस्चार्जिंग एंड देन चार्जिंग. ओके, सो I नॉट वो जीरो को टच नहीं करेगा बिकॉज वी आर हैविंग द फ्री व्हीलिंग डायोड ओवर देयर. ये है सिंगल फेज हाफ वेव RLE लोड. अब RLE बोलेंगे तो इसे बोलेंगे आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर. दिस इज द आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर. ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. ये हो गया उसका वेवफॉर्म. Okay, by using the single pulse. Why I am saying by using the single pulse? Because here we are using only one thyristor. Okay, the same function will going to apply. E जितना रहेगा, अगर ये 100 है तो 100 रहेगा, 50 है तो 50 रहेगा. इसका मैग्नीट्यूड. देन उसके बाद हम ट्रिगर करते हैं. ट्रिगर करने के बाद अल्फा से जैसे ही हमारी ये वैल्यू है वैसे ही इट विल स्टार्ट वर्किंग. कब तक? बिकॉज इंडक्टर इज देयर. कब तक? जब तक हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज ना हो जाए, तब तक ये जीरो तक जाएगा, जीरो से निगेटिव भी जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट when it is zero, it will come back to its position, that is E, and then after by giving the another gate pulse, it is again start conducting. Okay, again start conducting in the positive half cycle. Again the same thing. यहाँ पे जैसे ही इंडक्टर यहाँ पे है, ये जीरो हो गया, बराबर है, because there is no such another parameter over there, because with the help of the inductor will start discharging. Because of that it touches the value of zero. L touches the value of zero. Okay, तो जैसे ही ये जीरो हो जाता है, ये E पे चला जाएगा. E पे कांस्टेंट रहेगा जब तक दूसरी पल्स उसे नहीं मिलती. जैसे ही दूसरी गेट पल्स, फायरिंग पल्स उसे मिल गई, देन इट विल एक्ट एज अ VS और फिर से वो बैक हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द सिंगल फेज हाफ वेव
rectifier, controlled rectifier for separately excited DC motor. All right, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? मैम हाँ बेटा, मैम ये ई वाला पेन है ना, बताएंगे देखा कौन सा ई वाला? हाँ ई मीन्स हमारा बैक ईएमएफ, ये वाला। हम कितना देते हैं लोड? हम 100 देते हैं, हम 50 देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ये वाला, ये वाला, समझा? यस मैम। हाँ, ये देखो 0 से कुछ ऊपर आ रहा है, 100 आ रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? यस मैम। ये 100 है क्योंकि हमने 100 दिया। अगर मैं वहां पे 50 रख दूं तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द सिंपल, हम बोल सकते हैं हाफ वेव। बट हमने कौन सा परफॉर्म किया? RLE वाला, सिंगल फेज वाला, सेमी कंट्रोल। यस और नो? यस मैम। ये देखो सिंगल बस, अगर हम फुल वेव कन्वर्टर की बात करते हैं तो वी आर हैविंग द मिड पॉइंट कन्वर्टर। ये 2 पल्स मिड पॉइंट, 2 पल्स क्यों है? क्योंकि दो थायरिस्टर हमने यूज किया। दिस वन इज ए पार्ट, ओके? ये वाला, सिर्फ ये डायग्राम पे फोकस करो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? सिंगल पल्स है, सिंगल पल्स। और ये जो है, इसको हमने क्या किया? मिड पॉइंट में इसको अटैच कर दिया लोड को, और यहाँ पे थायरिस्टर 2 दे दिया, ठीक है? ये हो गया हमारा सिंगल फेज 2 पल्स। 2 पल्स वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग 2 थायरिस्टर मिड पॉइंट, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन द मिड पॉइंट, लोड इज कनेक्टेड इन द मिड पॉइंट। सो दिस इज द सिंगल पल्स, the single phase 2 pulse midpoint converter, okay? And this one is 3 phase because we are having A, B, C, A dash, B dash, C dash. So and using the 6th thyristor, using the 6th thyristor, ये हो गया सिंगल फेज के लिए, ये हो गया 3 फेज के लिए, ओके? 3 फेज 6 पल्स मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्यों? क्योंकि न्यूट्रल से इन्होंने कनेक्ट किया है लोड को, इसके मिड पॉइंट से कनेक्ट किया है लोड को। That's why it is called midpoint converter 6 pulse. Why? Because we are using 6 thyristor for 3 phases. Okay, A, B, C, A dash, B dash, C dash. उन सब के लिए हमको एक डिफरेंट थायरिस्टर की जरूरत है. So this is the 6 pulse. Is it clear? This is the single pulse, single phase 2 pulse bridge converter. Single phase 2 pulse bridge converter. Okay, and this is the single phase 6 pulse bridge converter. Okay, अभी से 2 pulse बोला है क्योंकि ये यहाँ से रन होगा एट ए टाइम 2 थायरिस्टर रन होंगे, एट ए टाइम 2 थायरिस्टर रन होंगे. ओके, और यहाँ पे एट ए टाइम ऐसे 2 थायरिस्टर रन होंगे यहाँ पे भी. ठीक है, मैं बताऊंगी कि ये कैसे होता है 3 फेज और सिंगल फेज. सो फर्स्टली सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर हम देखते हैं. ये मिड पॉइंट कन्वर्टर है, मिड में RL लोड लगा हुआ है. द डायग्राम विल बी लाइक दिस. ओके, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है AN BN मतलब A फेज और B फेज. ठीक है, फेज टू न्यूट्रल फेज बोलते हैं, फेज टू न्यूट्रल फेज बोलते हैं. तो AN एक फेज हो गया, BN एक फेज हो गया. इसलिए इन्होंने कैसे डायग्राम ड्रॉ किया, देखो ये AN की डायग्राम है, सॉरी AN की वेवफॉर्म है, और उसके अपोजिट हमारी BN की वेवफॉर्म है. तो एक तो उसे VBN बोलो या फिर -BAN बोलो. एक तो
इसको से VBN बोलो, ये VBN हो गया, ऊपर गया माइनस VAN हो गया. ओके, सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ सिंगल फेज. ये सिंगल फेज ही है. अब ये कैसे वर्क करेगा? RL लोड लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा निगेटिव में गया. अल्फा है, फायर हो जाएगा, फायर होने के बाद AN वर्क करेगा. AN के बाद क्या वर्क करेगा? हमारा PN वर्क करेगा. AN के बाद हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए PN वर्क करेगा. यस और नो? पहले ये वर्क करेगा AN. AN कैसे वर्क करेगा? AN पॉजिटिव, थायरिस्टर 1, HELRFG ऐसे वर्क करेगा, ऐसे. ठीक है, ऐसे वर्क करेगा. और PN के लिए कैसे वर्क करेगा? PN पॉजिटिव, T2E, LRF, PN निगेटिव. ओके, अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा? A T1 RL लोड N, A T1 RL लोड 1. बट यहाँ पे कैसे वर्क करेगा? यहाँ पे ये इसका पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा, इसका पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा. मतलब ये जो है इसका पोलैरिटी हमने उल्टा कर दिया, उसको ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. सो P पॉजिटिव T2 लोड N, P पॉजिटिव T2 लोड N, ये ऐसे वर्क करेगा. तो एक ऐसे वर्क कर रहा है और एक ऐसे वर्क कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी AM के हिसाब से. ओके, AM के हिसाब से डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है? उल्टी है. ओके, सॉरी, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, ये ऐसे आएगा. ऑलराइट, सो दिस इज दी RL लोड मिड पॉइंट सिंगल फेज फुल्ली कन्वर्टर, फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ R, यहाँ पे ये छोटा सा एक डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है. जैसे ये डिस्चार्ज होता है, फिर से जैसे ट्रिगर पल्स मिल जाती है, T2 को अब ट्रिगर पल्स मिलेगी. वहाँ पे कैसे जीरो होता था? क्योंकि एक ही पल्स था, दूसरा पल्स नहीं था, तो उसकी वजह से क्या होता था? हमारा जीरो पे चला जाता था, R लोड रहे या RL लोड रहे. ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है. कंटिन्यूअस कंडक्शन, पॉजिटिव हाफ साइकिल में TN विल कंडक्ट, निगेटिव हाफ साइकिल में T2 विल कंडक्ट. सो देयर इज एन कंटिन्यूअस कंडक्शन बिटवीन दी T1 एंड T2. सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जीरो को टच नहीं करेगा. ठीक है, जीरो को क्रॉस करके वो नीचे जा रहा है, एंड देन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज VBN से फिर से जा रहा है निगेटिव. जैसे ही ये इंडक्टर ये हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ये नीचे चला जाएगा. देन अगेन 2 पाई प्लस अल्फा में कंडक्शन आ जाएगा, देन अगेन 3 पाई प्लस अल्फा में कंडक्शन आ जाएगा. इन दिस वे ये क्या हो जाएगा? 2 पल्स. ये क्या हो गया? 2 पल्स. ये हो गया 2 पल्स. ठीक है, VAN VBN बोलो या VAN माइनस VAN बोलो, 2 pulse. Okay, so we are having 2 different waveforms. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Good, very good. Then single phase full wave bridge converter. Single phase full wave bridge converter. अब single phase full bridge converter हम देखेंगे. ये हमने किया है परफॉर्म. यस और नो? यस. यस है ना? कैसे परफॉर्म किया बताओ, कैसे ये होगा? मोड 1 बताओ. चलो, कौन बताएगा मोड 1? मैं नाम लूं कि आप बताओगे? बोलो बेटा. प्रतीक. मैम T1 वोल्टेज सोर्स से कभी भी बताना, ऐसे बताओगे तो मैं बिल्कुल मार्क्स नहीं दूंगी. voltage source. Yes. T1. यस. Then RLE. यस. Then T2. यस. And then VS. Negative VS. Okay, so voltage across the load is V0. V0 is okay, but अगर हम VS के फॉर्म में बोले VAB, हम बोल सकते हैं VAB, A point B point. इसको याद रखो. इसको याद नहीं रखोगे 3 फेज में बहुत प्रॉब्लम होगा. You are getting my point. This plays an important role to understand how exactly the current will flow. For that purpose, they are writing their A, B, C. Okay. So this plays
वन इम्पोर्टेंट रोल. इफ सपोज आई एम आस्किंग कि वोल्टेज, लोड वोल्टेज के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो योर आंसर शुड बी VAB. What will be your answer? It should be VAB. All right. Now next. Vidya is there? Vidya? Sakshi Kadam? Sakshi Kadam, are you here? Yes, ma'am. Can you tell me the next cycle? The flow of current for the next cycle? Can I try? Yeah, sure. Ma'am, from VS, T3, then RLE, then T4, and back to voltage source. Right. And the voltage across the load is VBA VB. or minus VAB. Right. Good. तो पहले सबसे पहले बात कौन सी बोलनी कि once the T1 T2 has conducted, उसके बाद the polarity of the voltage source will change, right? The polarity of voltage source will change. तो जो प्लस है वो माइनस होगा, माइनस है वो प्लस होगा. तो कैसे जाएगा? VS प्लस P, T3 RLE, T4 A, VS minus. Okay, so the voltage source across the load is VBA or minus VAB. All right, so very good. अब ये देखो, पहला जो डायग्राम है वो देख, ये कर्सर देख रहे हो क्या? मेरा कर्सर दिखता है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो फर्स्ट है देखो VAB गया, ये जो डार्क लाइन है VAB, दूसरी है VBA, दूसरी है हमारी VBA. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने एक फायरिंग एंगल अल्फा दे दिया. अब वो अल्फा यहाँ पे दे दिया हमने, तो जैसे ही अल्फा दे दिया तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है ये E है, ये क्या है बेटा? E. 100 है तो 100, 50 है तो 50, जितना है उतना. ओके, तो जैसे ही है हम यहाँ पे दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है? T1 T2. यहाँ पे लिखा भी है. यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है बेटा? T1 T2 कंडक्ट कर रहा है. तो जैसे ही T1 T2 कंडक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ हम एक ही फायरिंग पल्स देंगे, दोनों को एक साथ हम एक ही फायरिंग एंगल देंगे. हम चेंज नहीं करेंगे उनका फायरिंग एंगल. ओके, सो जैसे ही उनको हमने दे दिया T1 T2 को फायरिंग एंगल, ओके, एट एन एंगल 30 डिग्री अगर आप समझते हो तो 30 डिग्री का हमने एंगल दे दिया, तो क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे ये वापस आएगा. अब यहाँ पे आ गया आपका पाई, यहाँ पे आ गया आपका पाई, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ड्यू टू द इंडक्टर यहाँ पे हमारे इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. जैसे ही इंडक्टर आ गया ये इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. जैसे ही ये डिस्चार्ज होता है, ये जब तक डिस्चार्ज होता है तब तक ये जीरो पे जाएगा. ठीक है, जैसे ही हमें दूसरा फायरिंग पल्स मिलता है, जैसे ही T3 T4 हमारा कंडक्शन मोड में आ जाएगा, वैसे ही इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज द VS पोजीशन. ओके, ये VS पोजीशन पे फिर से आ जाएगा और ये VBA रहेगा. ये क्या होगा? हमारा VBA. ये हो गया हमारा VBA. VBA भी आएगा. जैसे ये VBA आता है, हमारा करंट अगेन इट विल स्टार्ट चार्जिंग. ओके, सो व्हेन देयर इज अ conduction of the thyristors, the current start charging. Okay, and then when it comes to zero, then it will start discharging. This is the simple format for the single phase half wave. Okay, single phase full wave. So आपको समझा? ये हमारे पास होगा सिंगल फेज फुल वेव. ओके, ये हो गया हमारा सिंगल फेज फुल वेव. इज इट ओके? Ma'am, one doubt. हाँ बोलो.
करंट वेवफॉर्म में मैम वो मैक्सिमम को जाके जीरो का टच हो रहा है और हाँ ग्राफ में वो फ्लोटिंग दिखाता है, मतलब जीरो के ऊपर ही है। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का रहता है बेटा, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस का रहता है। ठीक है, ये फ्लोटिंग दिखा रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज कर दूं तो अकॉर्डिंगली मेरा करंट वेवफॉर्म चेंज होगा। समझे? मैंने अभी इंडक्टेंस की वैल्यू, हाँ इंक्रीज करना पड़ेगा क्या वैल्यू या डिक्रीज करना पड़ेगा? हाँ, अपन चेक कर लेते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस करती हूँ 100, लेट्स चेक क्या होगा। रेजिस्टेंस मैंने ज्यादा कर दिया तो इसकी वैल्यू देखो बहुत कम हो गई। आप देख रहे हो करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, राइट? देखो करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, जीरो जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज में भी फिर चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 करती हूँ, अब देखो अब जा रही है जीरो। नो मैम अब नहीं जा रही। हाँ, तो मैंने पहले ही बताया था I नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। मैंने बताया था Vm/R था। हाँ, तो जैसे ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा जो करंट है वो क्या होगा, कम होगा। अगर मैं उसकी जगह इसको 1000 कर दूं तो चेक करें 1000 का। यस मैम। हाँ चलो चेक करते हैं। देखो अब समझा? यस मैम। ओके, तो मैं 1 रख दूं यहाँ पे। So it depends on the resistance। उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम ली होगी, है ना, बहुत कम ली होगी, इसकी वजह से इट इज फ्लोटिंग। Am I right or wrong? So it is totally depend on the resistance because the formula of I naught, that is current, is equal to Vm upon R। Vm upon R जो हम रेजिस्टेंस लोड के लिए यूज कर रहे हैं, that depends on the R value। Okay, so accordingly वो वैसे change होगा। So this we have done this, right? अब ये किसके लिए है? अल्फा इज ग्रेटर देन 90। ये किसके लिए है? अल्फा इज ग्रेटर देन 90, इसके लिए है। समझे? ये अल्फा इज ग्रेटर देन 90 के लिए कैसी वैल्यू आएगी ये देखो। ठीक है, उन्होंने अल्फा की वैल्यू चेंज की है। उन्होंने क्या किया? अल्फा की वैल्यू चेंज की। अब अल्फा की वैल्यू ये हो गया बेटा हमारा 90 आएगा, ये 90 आएगा हमारा, बराबर है। उन्होंने फायरिंग क्या दी? ग्रेटर देन 90 दी है। उन्होंने वैल्यू क्या दी? ग्रेटर देन 90। तो जैसे ही ग्रेटर देन 90 गया तो जो सेकंड वाली टर्म है, मतलब जो निगेटिव साइकिल है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी। जो सेकंड साइकिल है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके,
ठीक है, अब ये हमारा 90 पे आ जाता है, ये हमारा हो गया 90, ओके। और ये 90 के बाद कुछ दिया है 95 या 100, ओके, 95 या 100 या समथिंग 105 ऐसे कुछ दिया होगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे कंडक्शन होगा, जैसे ही 90 के बाद कंडक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा नेगेटिव साइकिल, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो जैसे ही ये नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ से हमारा कंडक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा कंडक्शन, तो ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा इसको, तो ये फॉलो करेगा इसको, ये फॉलो करेगा इसको, ठीक है, इसने फॉलो कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया, एंड देन ये जैसे आ रहा है वैसे वो आएगा, ये जैसे आ रहा है वैसे वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि ये निगेटिव साइकिल में जाएगा, निगेटिव साइकिल में जाएगा कब तक, जब तक दूसरा हमारा कंडक्शन स्टार्ट ना हो, जब तक दूसरा हमारा कंडक्शन स्टार्ट ना हो वो ऐसे जाएगा। यहाँ पे हमारी दूसरी साइकिल आएगी, यहाँ पे हमारा होगा 2 पाई, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही आ गया ऐसे, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वो निगेटिव में जा रहा है, मिनिमम वो पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वो निगेटिव में जा रहा है, मिनिमम वो पॉजिटिव, सिर्फ इतना ही कंडक्शन हो रहा है उतना, तो उसका पॉजिटिव में ये सिर्फ इतना ही कंडक्शन हो रहा है, निगेटिव में ज्यादा हो रहा है, समझे। तो जब ये निगेटिव में जाएगा, मतलब ये कौन सा हो रहा है, if alpha is greater than 90, if alpha is greater than 90, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में जा रहा है। जैसे ही ये निगेटिव हाफ साइकिल में जाता है, तो मोटरिंग विल एक्ट एज अ ब्रेकिंग, ओके, उसका ब्रेकिंग हो जाएगा, मोटर विल एक्ट एज अ जनरेटर, ओके, उसका ब्रेकिंग हो जाएगा। जैसे ही ये अल्फा इज ग्रेटर देन 90 जाता है और ये धीरे धीरे निगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, जैसे हम 120 लेते हैं या 140 लेते हैं, तो जैसे जैसे वो हाफ साइकिल में जाता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा जो वेव फॉर्म है वो निगेटिव में जा रहा है। जैसे ही हमें V नॉट निगेटिव में मिलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है अभी तो, ये निगेटिव में जैसे जाता है, 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड, देख रहे हो आप, 3 फेज फुल्ली कंट्रोल और सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल। जैसे ये निगेटिव में जाएगा, अगर हम अल्फा देते हैं, तो हमारा क्या होगा, मोटर विल एक्ट एज अ जनरेटर, मोटर विल एक्ट एज अ जनरेटर, ब्रेकिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? यह अल्फा ग्रेटर देन 90 की वैल्यू है, उसके बाद भी बहुत वैल्यूज जाती है। ये सेमी कंट्रोल कन्वर्टर हमने देखा था, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, यस और नो, ये भी हम कर चुके अभी, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड वी हैव डन दिस, यस और नो? Yes, ma'am. The function will be same here also, but here the diode is there, right? There is no such thyristor will be there. There is only diode. So the second part of that, so the if suppose we are talking about the mode number 1, so the current, the flow of current will be like Vs positive, then T1, then RLE, then D1, okay, then D1, and then
current so the voltage comes across the load is VAB. Okay, so the voltage across the load is VAB. So as we can see over here, the first positive half cycle is VAB. So when we trigger the T1, then it comes like VAB, same like there. Okay, and then we have the, here we are conducting the T1 and D1. D1 is, there is no such controlling over there, because once this at the instance where we are giving the voltage, where we are giving the source, the D1 starts conducting. When we are giving source, the D1 starts conducting. So when the D1 starts conducting, there is no such trigger pulse we are giving over there. So that is why whenever we are using the diode, simple diode, that is uncontrolled, because we are not supposed to control. When we are using the thyristor with the help of the gate pulse or with the help of the trigger, we can control the thyristor. But in the matter of the diode, we are not supposed to control that. Okay, so D1 will conduct, T1 and D1 will conduct, and when it comes the pi, when it comes at pi, then the inductors that charged inductors start discharging through the freewheeling diode, so that the current will discharge gradually. When the current will discharge here, there is no such voltage comes across the, there is no such voltage comes across the load, so that is why it is zero. It start discharging, only it start discharging. Alright, and then after that again VBA, the same procedure will follow. Alright, so this is the single phase semi converter rectifier for RLE load or for DC motor. See, you can see here the semi converter and the full converter. Full converter 90 के बाद ही नेगेटिव में चला जाता है. It takes time for the semi converter to comes at it comes from zero positive half cycle. It comes at 180 degree, that is pi. Okay. Here they have used only one thyristor, so only one pulse is there. Now if we are talking about the three-phase converter, here with the help of diode, they have derived the function for the diode, but we are going to focus only on rectifier, only on thyristor. So this is the three-phase full converter, where we are using the T1, T3, T5 as a positive cycle converters, and T4, T6, T2, that is T2, T4, T6 are the negative cycle converter. Alright. So here ABC, that is the three-phase voltage supply we are giving. Okay. So, and we are giving the one motor over here. I'm having that.
Are you able to see this Simulink? Yes? Yes, ma'am. Okay. So consider this is T1. T1. Okay. This is T2. Okay. This is T3. T5. This is T4. T6. Okay. This is gate for E1 and E2. Okay. This is gate for E3 and E4. This is gate for E5 and E6. सिंपल डायग्राम. यहाँ पे हमने 3 फेज प्रोग्रामेबल वोल्टेज सोर्स लिया है. यहाँ पे हमने 440 किया और 50 किया. फेस टू फेस वोल्टेज 0-50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट. उसके बाद हमने ये पैरामीटर 3 फेज VI मेजरमेंट लिया, वोल्टेज करंट मेजरमेंट. इसको हमने फेस टू ग्राउंड था, फेस टू फेस किया है. और करंट मेजरमेंट को हमने नहीं बोला है. वी डोंट नीड दी करंट IS करंट. ओके, सो दैट्स व्हाई हमने करंट मेजरमेंट को निकाल दिया. अगर हम बोलते तो यहाँ पे जैसे VABC आया वैसे IABC आएगा. दिस इज T1, T3, T5, T2, T4, T6. ये हमने नाम ऐसे क्यों दिए? बिकॉज वी शुड नो कि जैसे मैं T1, T2 बोलती हूँ तो ये आराम से हमें समझ में आएगा. सो टू नो द फ्लो ऑफ द करंट हमने इसके अकॉर्डिंगली प्रिफरेबली हमने नाम दिया है. सो द गेट इज फॉर T1 and 2, then 3 and 4, and then 5 and 6. Okay, these are the gate pulses scope. Here we are using the resistance, inductance, and the DC source over here. Okay, so if we run this, okay, sorry, यहाँ पे मैंने क्या दिया है? मैंने जब भी आपको बताया कि जब भी हम 3 फेज की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे 30 plus A, that A is alpha. 30 plus A by 360 into 0.02. ये मैंने बताया था आपको. yes or no? बताया था, राइट? तो ये जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिमुलिंक. सिमुलिंक एंटर करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम लिखेंगे A equal to 30. एंटर. जैसे ही A equal to 30 है तो यहाँ पे जितने भी A है सब तीनों में वो 30 को ऐड कर देंगे. A is equal to 30 की वैल्यू को कंसिडर करेंगे. ये मेरा वोल्टेज सोर्स अभी ऐसे आ रहा है. ठीक है.